Okay, so now we'll be starting with Bernoulli's differential equation. So this equation is of this form: dy by dx plus px y is equal to qx y raised to power n. Okay. So earlier we had dy by dx plus px y is equal to qx. Now we have a factor y raised to power n which is multiplied with qx. So can you tell me what we can do? Anybody? I want to convert it into this form. Yeah, so quite obviously first step will be divide with y raised to power n. So what you will get 1 by y raised to power n dy by dx. Here you will get 1 upon y raised to power n minus 1 is equal to qx. So next step should be, अब क्या करें? देखो ना बेटा, उस फॉर्म को बनाना है तो इसको z पुट करो, राइट? सो पुट 1 upon y raised to power n minus 1 is equal to z. So what you will get? You will get n minus 1 minus n minus 1 y raised to power n dy by dx is equal to dz by dx. Clear beta? So your equation becomes, so you see this portion 1 by y raised to power n dy by dx is your dz by dx with a factor of 1 minus n in the denominator. Dz by dx plus px into z is equal to qx. Right? So this is just a number 1 upon 1 minus n. This is a number. Okay, so you just multiply, you will get dz by dx plus 1 minus n into px. Z is equal to 1 minus n into qx. So now this is your px and this is your qx. So this is in the linear form. Linear first order differential equation, and you know how to solve it. Is that okay? So earlier y raised to power n was present, so it was non-linear, and with your substitution, that is 1 upon y raised to power n minus 1 is equal to z, you have converted it into a linear differential equation. So ऐसा नहीं है कि whenever you have a factor say y raised to power 100, I can always put that factor is equal to z. No, because जो उसके derivatives हैं वो भी consume होने चाहिए. So ultimately y की सारी powers हटनी चाहिए. That happens only in this special case, not in every case. Okay beta? So when you have this special form, this form here, then only this conversion which I am telling you will convert it into linear, not in every differential equation. Am I clear? So let us quickly do one problem. Solve y dash plus 4xy plus xy cube is equal to 0. So this is the differential equation. Order is, what is the order of this differential equation? First order है ना बेटा? सिर्फ y dash दिख रहा है आपको? Linear, non-linear? Because you can see y is power 3. So this is non-linear. So let us solve it. क्या होगा बेटा? What happened? Please don't talk. Okay, so you have, so can you see, I can write it like this: y dash plus 4xy is equal to minus xy cube. So this equation is 1 by y cube y dash plus 4x 1 by y square is equal to minus x. Okay, so put 1 by y square is equal to z. So you'll get minus 2 by y cube dy by dx is equal to dz by dx. So you get 1 by y cube dy by dx is equal to minus 1 by 2 dz by dx. Clear beta? So you don't need to remember the formula every time. You can just put and you can compute the value of dy by dx with a factor of 1 by y raised to power n. Here is 3. Is this step clear to everybody?
any doubt, please ask. मैंने नोट्स अपलोड कर दिए बेटा, है ना? कौन पूछ रहा था उसे? आप। ओके. So if you miss something, तो मैं नोट्स अपलोड कर रही हूँ, सेम वेबसाइट, just I have written maths too, so you can see. Okay, so what you will get? So you have, क्या बन जाएगी बेटा आपकी इक्वेशन? This is minus 1/2 dz by dx plus 4x into z is equal to minus x. So that is dz by dx minus 8xz is equal to 2x. Okay beta. So can you find out integrating factor? Integrating factor now is, everybody knows, right? E raised to power whatever is here minus 8x dx. So this is e raised to power minus 4x square. So your solution is z, why नहीं z, क्योंकि dependent variable is now z, into integrating factor e raised to power minus 4x square is equal to right hand side which is 2x into integrating factor dx plus a constant of integration. So quickly tell me, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? Yeah, so you just put, हाँ, okay. So you put 4x square is equal to t. So you have 8x dx is equal to dt. So this is 1/4 e raised to power minus t dt. Got it? समझ आ रहा है बेटा? Plus a z e raised to power minus 4x square. So this is z e raised to power minus 4x square is equal to minus 1/4 e raised to power minus t. I am putting back the value of t, which is minus 4x square. It will become plus a. And also put the value of z, which was 1/y square. So you get e raised to power minus 4x square upon y square is equal to minus 1/4 e raised to power minus 4x square plus a. So you can leave your solution here, or you want to do further manipulation, that is your choice. Okay बेटा? e raised to power 4 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. So it will be simpler. So अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से भी चली जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ रहेगा. So it's up to you. अगर आपको बोला गया है कि शो करो दिस इज द सॉल्यूशन, देन ऑब्वियसली यू हैव टू डू द मैनिपुलेशंस. बट अगर सिर्फ सॉल्यूशन पूछा गया तो यू कैन लीव इट हियर. इससे ऊपर बेटा. ओके, कहाँ पे डाउट है कोई या जस्ट नॉट? बेटा ये सबको क्लियर है बर्नौली? सो अभी तक हमने क्या क्या किए हैं? वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, लीनियर. ऑल्दो एग्जैक्ट ही है वो, उसको एग्जैक्ट बनाया था. एग्जैक्ट में वी हैड सीन हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एंड वी हैड डिस्कस्ड 3 केसेस. एंड यू आर सेइंग इन द बुक देयर आर मोर केसेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल सकते हो. बट आपके एग्जाम में only these 3, it will be limited to 3 cases which I have discussed in the class. But if you want to learn, obviously you are free, जो बुक में दिए हुए हैं. और भी केसेस हैं, जैसे हमने ये किया था ना, करली m by करली y माइनस करली n by करली x अपॉन n इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली. सो बुक में और भी है ऐसे केसेस कि कुछ और हो रहा है, नीचे m माइनस n से डिवाइड कर रहे हो तो ये बन जा रहा है. सो दैट इज योर चॉइस, बट हम एग्जाम्स में नहीं देंगे. So do you have a group for EC 3 and 4 combined जहाँ पे मैं solution भेज, सॉरी ये एक्सरसाइज भेज सकूँ? कंबाइन नहीं है? जो ऑलरेडी हमारा UMA 010 वाला बना हुआ था उसमें सब हो? ठीक है, उसको ऐड कर लेना बेटा. वो वेबसाइट पे, नहीं तो मैं दोबारा इसका लिंक दे दूंगी. ठीक है, तो उसी में मैं सोल्यूशन, ये एक्सरसाइज जिसके पास बुक नहीं है, जस्ट द एक्सरसाइज प्रॉब्लम साइज मैं वहां पे लिख दूंगी बेटा वेबसाइट पे. जो लोग नहीं है, आप लास्ट टाइम मेरे साथ नहीं थे? ओके बेटा. सो मैं आपको वेबसाइट पता है मेरी वाली?
नहीं आप ओके, आफ्टर द क्लास मीट मी, जो लोग नहीं थे। चलिए आगे बेटा, नोटेड एवरीबडी। थोड़ा सा बेटा वो ऐसे इतना डल होके मत बैठो, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। कोई डाउट नहीं है किसी को? मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? बोरिंग लग रहा है? थोड़ा सा ऐसे बात करो, ये क्या है? ठीक, चलो लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस। सब लोग फटाफट मुझे बताएंगे आंसर्स। एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लॉग एक्स। टेल मी, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आई वांट द सोल्यूशन। एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लॉग एक्स। फास्ट, क्या है बेटा सोल्यूशन? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ये आ रहा है मेरा। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस सी और ए वॉट एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आ रहा है? डू आई शुड आई डू इट हियर? किसका नहीं आया बेटा बताओ। सो क्या करोगे आप? यू विल डिवाइड विद वाई स्क्वायर एंड ऑल्सो विद एक्स। सो व्हाट यू विल गेट? वाई डैश 1 by y square plus 1 by x 1 by y is equal to x log x. So I have divided with xy, है ना? xy से क्यों? क्योंकि इसको भी हमने 1 बनाना है ना, y डैश का कोफिशिएंट भी 1 बनाना है ना बेटा। Clear? Now you'll put 1 by y is equal to z. So minus 1 by y square, y dash is z dash. So you'll get minus z dash plus 1 by x into z is equal to x log x. Clear? So now you'll just find out the integrating factor, which is e raised to power 1 by x dx, which is e raised to power log x, which is x. So your solution is z into x is equal to right hand side, which is हाँ माइनस है। जस्ट मिनट, मैं इसको वो कर दूंगी ना, सॉरी। सो माइनस जेड डैश है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो यू हैव जेड डैश माइनस 1 by x, z इज इक्वल टू माइनस log x log z. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, ये ध्यान रखना बेटा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। सॉरी आई एम सॉरी। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ln z होगा तो वो लीनियर ही नहीं है फिर, ठीक है बेटा, फिर ऐसे नहीं सॉल्व होगा। ओके, सो इन केस यू हैव ln z ऑन द राइट हैंड साइड, दिस इज हाईली नॉन लीनियर, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। ओके, the integrating factor is e raised to power minus 1 by x dx, which is e raised to power minus, so this is 1 by x. Clear? तो इंटीग्रेशन इजी होगी, पहले x आ रहा था, फिर हमारे राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर log x आ जाता, सो इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट। सो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो योर सॉल्यूशन इज
z into integrating factor, okay, is equal to right hand side into integrating factor plus a. So this is z by x. ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बाय पार्ट्स करते हो, सबको पता ना. सो x ln x माइनस x प्लस a. कुछ गड़बड़ है? माइनस की गई. हाँ ठीक है, एक माइनस की गड़बड़ है ना. ठीक. तो यहाँ से इसको 1 by y लिखिए. So you'll get xy is equal to 1 upon minus x log x plus x plus. So this is your solution. Is that okay, beta? So this was chapter 4 of Jan and angle. Okay? So we are done with chapter 4. Okay? So chapter 4 में जो portion हमने करना था, so we are done. There are so many problems and I'll definitely recommend कि आप लोगों को करनी चाहिए. और मैं उसी ग्रुप पे एक्सरसाइजेज आज फॉर श्योर वहां पे मैं शेयर करूंगी. ठीक है, जो हमारा पुराना ग्रुप है जिसके पास बुक नहीं है. ठीक है बेटा. सो प्रॉब्लम्स करना बहुत जरूरी है. सो मेक श्योर सब लोग प्रॉब्लम साथ साथ में कर रहे हैं. ओके, लास्ट टाइम जैसा नहीं है कि आपका ऑनलाइन क्विज होगा, अब आपका ऑफलाइन होगा. काफी कुछ आपका ऑफलाइन होगा. सो स्टार्ट डूइंग, क्योंकि आपने पिछली बार वैसे उस सेंस में नहीं पढ़ा है. ऑल्दो ईएसटी में यू हैव ऑल डन वेल. ये अच्छा किया आप लोगों ने. बट स्टिल दिस सेमेस्टर इज लिटिल डिफरेंट देन द लास्ट सेमेस्टर. सो प्रॉब्लम्स करिए बहुत सारे. ओके बेटा. सो वील स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट चैप्टर 5. एनीबडी क्लास में कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं पता चला क्या हो रहा है क्लास में? कोई है? प्लीज लेट मी नो. यू कैन टेल मी बेटा. कई बार होता है ना, मेरे साथ भी होता है कई क्लासेस में जब मैं पढ़ती थी कि यार ये समझ नहीं आ रहा है, फिर अगला चैप्टर शुरू हो गया, फिर हम और पीछे रह जाते हैं, फिर एंड में पढ़ने का मन ही नहीं करता है. सो अगर ऐसा है तो लेट मी नो. आई कैन मेक अ समरी, आई कैन ऑलवेज रिवाइज. अगर एक भी स्टूडेंट है तो वी कैन ऑलवेज डू दैट. नहीं बेटा ऐसा नहीं है. ठीक है, क्योंकि अभी हमारे बहुत टाइम पड़ा है. ऐसा नहीं. ठीक है, थोड़ा सा शुरू करा दूंगी. आई कैन बी स्लो. ठीक है, बट ऐसा नहीं कर, क्योंकि टाइम का भी कंस्ट्रेंट है. सो आई कैन बी स्लो, धीरे धीरे. ठीक है, लास्ट चैप्टर का मैंने समरी ऑलमोस्ट बना ही दिया है, कुछ ज्यादा नहीं हमने किया, बट ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. मैंने बोल दिया था बेटा लाइब्रेरी में भी. किस किस के पास बुक है? क्रेजिक ले लो. ठीक है, हाँ क्रेजिक ले लो, उसमें भी सेम है. मैं चैप्टर बता दूंगी कल आपको क्रेजिक का कॉन्सेप्ट. देखो बेटा, मैं जो है जैन एंड एंगल फॉलो करती हूँ, बट क्रेजिक भी मेरे पास है, उसमें से भी मैं कई बार क्वेश्चंस लेके आती हूँ. सो दैट इज आल्सो अ गुड बुक. पीडीएफ नहीं है बेटा मेरे पास जैन एंड एंगल का, अदरवाइज अगर किसी के पास है यू कैन टेक. है क्या कह रहे हो? एल्विन क्रेजिक वही है. ठीक है, सो दैट आल्सो इज अ गुड बुक. कल मैं आपको चैप्टर बता दूंगी उसमें से कौन सा चैप्टर है. ठीक है, अगर क्रेजिक है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बुक आपका व्हाट्सएप में आई विल शेयर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो आइडिया इसकी प्रैक्टिस करना है ना, तो लास्ट टाइम भी हमने ऐसे किया था, तो मैं आपको एक्सरसाइज शेयर करूंगी. ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 5. ओके, सो हियर टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, राइट? नाउ so I am asking linear ordinary differential equation. Although I have told you that in whole semester we will be talking about only ordinary differential equations, but still I am writing once more. Of order n. Can anybody tell me what will be the general form of a differential equation जो linear है और nth order की है? Not the polynomial बेटा. I am saying linear. मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास एक linear, बेटा listen carefully बेटा, please don't talk. You have a linear differential equation of order
n, उसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है? लीनियर मतलब y और उसके डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और उसकी हायर पावर्स भी नहीं होंगी, है ना? इसका क्या मतलब है? और nth ऑर्डर का मतलब nth डेरिवेटिव तक उसमें होगा। सो इसका मतलब y पड़ा होगा, y डैश होगा, y डबल डैश होगा, y ट्रिपल डैश होगा, y का nth डेरिवेटिव होगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। सो लीनियर का मतलब है कि y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y nth डेरिवेटिव होगा। इसकी पावर्स नहीं होंगी, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो इनके साथ क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? फंक्शन ऑफ x, राइट? सो देयर विल बी अ फंक्शन ऑफ x, से a0x प्लस a1x, y का n-1th डेरिवेटिव प्लस सो ऑन। यहाँ पे आपके पास है this is say an(x), this is an-1, an-2, an-3 is equal to some rx. So are you convinced? This is the most general form of a linear differential equation of order n. most general form मतलब हर इक्वेशन इसी फॉर्म की होगी। लीनियर है इसलिए y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y का nth पावर nth डेरिवेटिव ये सारे सिंगल सिंगल पड़े होंगे, इनकी पावर्स भी नहीं आ सकती और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो सकते हैं? दे कैन बी मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन ऑफ x. So I have multiplied y with the function of x. I am calling that as an(x), an-1x, an-2x and so on. So this is the most general form of a linear differential equation of order n. Clear beta? So इसका मतलब although we will not study up to order n, so इसका मतलब most general, this is most general form. Okay, so what is the most general form of linear differential equation of order 1? That will be a0x y dash plus a1x y is equal to rx. rx for right hand side, ना? ये तो हमने कर ही ली ना ऐसी फॉर्म, अभी हमने यही तो सॉल्व किया है, बस हमने a0 से डिवाइड कर रखा था। एंड ऑब्वियसली a0 इज नॉन जीरो। व्हाई? क्योंकि अगर a0 जीरो हो गया फिर ऑर्डर कम हो जाएगा ना, एंड वी आर सेइंग ऑफ ऑर्डर n, so we are saying a0 is not a zero function. मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने n ऑर्डर की बात कर रही थी, अब अगर मैं 1 ऑर्डर की बात करूं मतलब n 1 है, तो इसी का फॉर्म है जब n 1 है। So this we have already studied in chapter 1, है ना? ऑर्डर 1 की हमने चैप्टर 1 में स्टडी, चैप्टर 4 में स्टडी कर ली, तो लास्ट हमने चैप्टर स्टडी किया है। So now we will be studying of order 2, most general form of linear differential equation of order 2. So what will be that? That will be a0 x y double derivative plus a1 x y derivative plus a2 x y is equal to rx. So these are the differential equations we'll be studying in this chapter. We'll be studying linear differential equations of order 2. In the last chapter we had studied linear differential equations of order 1. Order का फर्क है बस. Is this clear beta? Yes. So we'll try to solve these differential equations now. So we'll be finding solutions of these differential equations. So in this chapter we will find solutions of these differential equations. Clear order? So now can you see last chapter और इस chapter में we have changed the order. ऐसे करते हैं ना हमेशा, पहले सिंपल पढ़ते हैं फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो लास्ट चैप्टर में ऑर्डर वाज 1, now the order is 2. Okay, so then you can go to order 3 also, although will not go in your course, but you can go order wise.
So again, as we have done in the first order case, we will write it in this form: y double dash plus a1 upon a naught. I'll call that function as px, that is a function of x into y dash, plus a2 upon a naught, that will be a function of x. I'll call that function as qx. Y is equal to rx upon a naught. I'll call it as capital R. So I'll study in this form. Okay. So I'll always make my differential equation in this form. It means that I'll make the coefficient of y double dash 1. ऐसा क्यों करते हैं हम? इससे हमारा रिजल्ट सिंपल हो जाता है बस. ठीक है. ऑल्दो आप इसी फॉर्म में रख के भी रिजल्ट निकाल सकते हो, बट फिर हमेशा ए नॉट, इससे देखो एक ए नॉट आपका कम हो गया है ना, एक चीज कम होगी ना आपकी, ए नॉट इज नो लॉन्गर देयर, सो यू आर डीलिंग ओनली विद थ्री फंक्शंस p q एंड r, तो थिंग्स विल बी सिंपलर. बट ऐसा नहीं है कि इस वाले कॉन्टेक्स्ट में आप एनालिसिस नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट इसमें सिंपलर है. सो विल ऑलवेज राइट फर्स्ट इन दिस फॉर्म एंड देन विल सॉल्व आवर डिफरेंशियल. इज दैट क्लियर बेटा? Anybody having doubt till now? So here, if you are in this equation, if Rx is 0, we call this equation as homogeneous differential equation. We will call it homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. And because we are going to use it again and again, I'll write HDE. Homogeneous differential equation. Homogeneous मतलब right hand side 0 है. अच्छा, फिर यहाँ पे होमोजेनियस वर्ड क्यों यूज हुआ है बेटा? हाँ जी, अगर राइट हैंड साइड 0 है फिर इसको होमोजेनियस क्यों कह रहे हैं हम? सो वी आर सेइंग दैट दिस इक्वेशन y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इज इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस है. होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? मतलब डिग्री नहीं, बस होमोजेनियस का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि सेम हो, है ना. होमोजेनियस मतलब सेम है हर जगह. अब देखो पहले क्या होता था, इसमें y है, इस टर्म में यस, इस टर्म में y है, यस, इस टर्म में y है, यस, इस टर्म में y नहीं थी ना, तो ये होमोजेनियस नहीं था. अब क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है, so you can assume this is 0 into y. So in that sense we are calling it homogeneous. Homogeneous मतलब homogeneity है, सेम है चीजें. Is that clear? हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ. अगर ये 0 है तब होमोजेनियस बोलेंगे, है ना. राइट हैंड साइड पे अगर x का फंक्शन है, we'll call it as नॉन होमोजेनियस. ओके, क्लियर बेटा ये डेफिनेशन सबको? एंड इफ Rx is non-zero, so we call it as non-homogeneous differential equation. Okay, so we have this y double dash जो ओरिजिनल थी, y double dash plus px y dash plus qx y is equal to rx. This is my non-homogeneous differential equation और this is my homogeneous differential. ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ, you will understand कि क्यों मैं इस पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि ये होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है. we'll see कि सॉल्यूशन इनकी कैसे रिलेटेड. So we have this. Can you verify this thing beta? जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन सबको क्लियर है बेटा? लास्ट डेस्क आप बताइए जिस हो रहे थे अभी. व्हाट इज जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, गुड. सो यहाँ पे कितने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे? यहाँ कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? ठीक है. सो नाउ यू नो दैट जनरल सोल्यूशन हियर विल इंक्लूड टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब जनरल से जो आपने निकाला हो. ठीक है, C1 और C2 को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, सो दैट इज योर पर्टिकुलर सोल्यूशन. क्लियर है ना सबको? राइट. सो नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग. सो हमारा एम क्या है? व्हाट इज एम? Find a
जनरल सोल्यूशन ऑफ किसका? नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि नॉन होमोजेनियस का आ गया, होमोजेनियस तो ऑब्वियसली उससे सिंपल ही है। ये हमारा एम है बेटा। So I am just writing something and you verify it. So I am saying, I am making a statement. Let Yg be a general solution of homogeneous differential equation and Yp be a particular solution of non-homogeneous differential equation. Then Yg plus Yp is general solution of non-homogeneous differential equation. So you see, Aram se, what we are doing is visible last desk? Okay. चलो पहले लिख लो, then I'll tell you what I am saying. Okay बेटा, so you see, इन दोनों में से होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में ऑब्वियसली नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन फाइंड करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू होमोजेनियस, क्योंकि देयर इज वन मोर फैक्टर इन्वॉल्वड Rx. So we are saying that somehow suppose आपने होमोजेनियस को सॉल्व कर लिया, मतलब होमोजेनियस का जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया. कैसे निकालना है, I'll tell you later on. So what I am saying is, suppose आपने होमोजेनियस का जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया Yg and non homogeneous का जनरल सॉल्यूशन is Yp. Then I am saying, I am making this statement that Yg plus Yp will be the general solution of non-homogeneous differential equation. So what we are saying is, non-homogeneous differential equation का general solution will be equal to general solution of the homogeneous differential equation plus particular solution of the non-homogeneous differential equation. क्लियर? तो इसका मतलब हमने जो टास्क है, टास्क ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज यू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड पार्ट इज यू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस. पर्टिकुलर मतलब कोई भी एक, वो देखना इजी होता है. इज दिस स्टेटमेंट क्लियर? इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, क्विकली विल प्रूव इट. देखिए बेटा, y is general solution of, let y is general solution of non homogeneous differential equation, okay, and yp is particular solution of होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, क्या हो गया बेटा, आप लोग बातें क्यों कर रहे हो? यू हैव एनी डाउट? इसका क्या मतलब है, अगर y इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मींस दैट ये वाला जो y है दैट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यू हैव y डबल डैश प्लस px. इसको अगर आप y से कंफ्यूजन है y1 ले लो, y1 डबल डैश प्लस p1 y1 डैश px y1 dash plus qx y1 is equal to rx, and yp is a particular solution of non-homogeneous differential equation. So you have yp double dash plus px yp dash plus qx yp is equal to rx. Is this in clear बेटा? नहीं, नॉन होमोजेनियस का मैंने assume किया है. Let y1 be a general solution of non-homogeneous differential equation. मुझे यही निकालना है ना. I want to find out the general solution of non-homogeneous differential equation. मैंने assume कर लिया कि वो y1 है, मैंने निकालना है कि what is y1, और yp non-homogeneous का
पर्टिकुलर सोल्यूशन दे रखा है आपको, तो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. नाउ यू सब्ट्रैक्ट. इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट, क्या आएगा देखिए, y1 माइनस yp डबल डेरिवेटिव है ना, प्लस px बाहर, y1 माइनस yp सिंगल डेरिवेटिव प्लस qx बाहर, y1 माइनस yp इक्वल टू 0. मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. इज दिस ओके? क्लियर है सबको? सब्ट्रैक्ट करके दिस इज व्हाट यू विल गेट. ये वाली इक्वेशन क्या है, राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, so this is homogeneous. तो यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से यू कैन से दैट दिस y1 माइनस yp इज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना y1 माइनस yp. बट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन था, yg. ऊपर yg है ना, yg is the general solution of homogeneous differential equation. So यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि this is the solution of homogeneous differential equation general. Therefore y1 minus yp is equal to yg. So that gives you y1 is equal to yg plus yp. यही कह रही थी ना मैं आपको कि general solution of non-homogeneous differential equation is equal to general solution of homogeneous differential equation plus particular solution of non-homogeneous differential equation. ये इसका पर्टिकुलर है, ये जनरल है, ये भी जनरल. Is that okay beta? So what we have done, we have assumed that let y1 be the general solution of non-homogeneous differential equation, इसलिए भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. Then let yp be the particular solution of non-homogeneous differential equation. So then again it will satisfy the differential equation. I have just subtracted and I saw that y1 minus yp is coming out to be the solution of homogeneous differential equation, क्योंकि right hand side पे 0 बन गया. But I am already given कि homogeneous differential equation का solution कौन है, yg. ठीक है, so इसलिए this will be equal to yg. तो यहाँ से क्या आ गया, y1 is equal to yg plus y. क्लियर बेटा? Clear? Okay beta. So we'll continue from here next week.